Welcome to our channel. It is the first chapter of English, a letter to God. So we should start it with before you read. It is a part of summary. It is also a summary. They say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him money? What your answer reach to this question would be? And guess how the story continues before you begin to read it. So इसमें कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, तो हमें किस में विश्वास करना चाहिए, यही प्रश्न इस कहानी में है। तो इस कहानी में जो इंसान है वो लेंचो, वो एक फार्मर है। उसकी जब क्रॉप्स खराब हो जाती है बारिश के कारण, हील के कारण, तब उसने भगवान को एक लेटर लिखा जिसमें उसे भगवान से 100 पेसोस मांगे थे। तो इसमें क्या होता है, क्या भगवान लेंचो को पैसे भेजते हैं? तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो का जो घर है वो पूरे एंटायर वैली में अकेला घर है, और वो एक नीचे पहाड़ के मतलब छोटा सा एक पहाड़ टाइप एरिया के ऊपर है, वो अकेला घर है। वहाँ में वो जो हाइट है उससे हम पूरी नदी देख सकते हैं, और कॉर्न मतलब एक क्रॉप होता है उसका पूरा फील्ड देख सकते हैं जिसमें डॉटेड फ्लावर्स है। तो हमेशा एकदम बेस्ट हार्वेस्ट प्रॉमिस करते हैं, मतलब उससे हमेशा अच्छी हार्वेस्ट होगी होगी। जो अकेली चीज पृथ्वी को चाहिए वो थोड़ी सी बारिश है। तो ऐसे ही एक सुबह लेंचो मतलब जो फार्मर है वो who knew his field intimately, मतलब जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था, उसने कुछ नहीं किया। वो बस सुबह को नॉर्थ ईस्ट में स्काई की तरफ देखता रहा। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied. Yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them come for dinner. It was during the meal just as Lencho has predicted. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. तो लेंचो कहता है कि अभी फाइनली हमें पानी मिलेगा, मतलब अपनी पत्नी को वो कह रहा है। तो जो वुमेन है वो घर में सुपर बना रही थी। उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, मतलब हाँ गॉड मतलब भगवान चाह रहे हैं। The older boys were working in the field. जो बड़े लड़के थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो छोटे लड़के थे वो घर के आसपास खेल रहे थे जब तक वो औरत ने उनको बुलाया। Come for dinner, खाने के लिए उन्होंने बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. ये खाने के समय ही था जैसे लेंचो ने आशा किया था, उसने प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही बारिश की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast में huge mountains of clouds दिख रहे थे, मतलब वो आ रहे थे।
माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब होता है, मतलब वो एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें बोलते हैं बहुत सारे क्लाउड्स, इसका मतलब होता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत अच्छी थी, मीठी सी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, This aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. तो लेंचो तब बाहर जाते हैं, यहाँ पे जो मैन है वो लेंचो के लिए कहा गया, तब वो बाहर जाते हैं तो कुछ भी करने के लिए नहीं, सिर्फ बारिश का जो बूंद है उसको अपने ऊपर फील करने के लिए। उन्होंने बाहर जाके मतलब वो खुश होके कहते हैं कि ये है जो है ना बारिश की बूंदे नहीं है, ये उनके लिए नए कॉइन्स है, सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. जो बड़े बारिश की बूंदे है वो 10 सेंट है और जो छोटे वाली है वो 5s है। 10 सेंट और 5 ये करेंसी है, मतलब करेंसी की मात्रा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect frozen pearls. तो संतुष्ट होकर बारिश जो है वो क्रैप कॉर्न, मतलब जो कॉर्न अभी पकी नहीं है, उनके फ्लावर्स में था, बारिश की तरफ गिर रहा था। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, ये थोड़ा सा फ्रीज टाइप है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, पर अचानक से तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, और बारिश के साथ ही ओले के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। हेल मतलब ओले। This truly did resemble new silver coins. उन्होंने सिल्वर कॉइन के समान हो गए, मतलब लेंचो के लिए। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. वो जो लड़के थे वो दौड़ के बाहर गए फ्रोजन पर्ल्स मतलब हेल्स को कलेक्ट करने के लिए। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो ने कहा, मतलब अभी ये सच्ची बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. उन्होंने मतलब क्या कि ये जल्दी खत्म हो जाए हेल स्टॉर्म, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। It did not pass quickly. ये जल्द खत्म नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside and the cornfield, on the whole valley. ये जो हेल स्टॉर्म है वो पूरा आधे घंटे तक, 1 घंटे तक चला। वो घर पर हेल्स गिरे, गार्डन में गिरे, हिल साइड में गिरे, कॉर्नफील्ड में गिरे और पूरे वैली में हेल्स गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। वो जो फील्ड थी जिसमें क्रॉप्स थे वो इतने सफेद हो गए जैसे कि नमक से ढके हुए हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. एक भी पत्ता पेड़ों पे नहीं रहा। जो कॉर्न थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, जो फ्लावर थे वो भी चले गए हील्स के कारण। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो को बहुत बुरा लगा। When the hailstorm passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब स्टॉर्म खत्म हुआ तब वो फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने सन से कहता है कि अगर एक प्लेग ऑफ लॉकस, मतलब लॉकस एक इंसेक्ट है जो क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि प्लेग ऑफ लॉकस मतलब ग्रुप ऑफ लॉकस। ए प्लेग ऑफ लॉकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब एक प्लेग ऑफ लॉकस जो होता है वो इससे ज्यादा छोड़ देता। मतलब हिल्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा, पर लॉकस होते थे कुछ भी थोड़ा भी छोड़ देते। This year we will have no corn. That night was a sorrowful one.
all our work for nothing. There's no one who can help us. We all go hungry this year. वो रात सबके लिए दुख भरी थी। तो लेंचो कहते हमारा जो काम है वो पूरा बेकार गया, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता, इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा।